Assalamu alaikum dear students. We are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 2, which is a differentiation. Today is our lesson number 23. In this lesson we will solve questions from exercise 2.5, and this exercise is about derivative of trigonometric functions. We know that trigonometric functions are sine, cos, tan, cot, secant and cosecant. So let's see some formulas of these trigonometric functions. First is sine. Derivative of sine x is equal to cos x. If there is angle is a differentiable function, then what we will do? If this x angle with sine is any other differentiable function, then we will take the derivative of sine, which is cos of f of x, the same function, and we will take the derivative of this function, whatever this function. Suppose this is sine 2x, so sine 2x, derivative of sine 2x will be equal to cos 2x, and then we will take the derivative of 2x to complete the derivative of this. Here this chain rule is applied. Derivative of this function and then derivative of this function, then it is cos x. So derivative of cos x is equal to minus sine x. Similarly, if angle with this cos is another differentiable function, then we will take its derivative as the derivative of cos x is minus sine f of x, and then we will take the derivative of f of x, and derivative of tan x is secant square x. So if there is a differentiable function here with tan, then we will take the derivative of tan, which is secant square, and we will keep this f of x as it is, and then we will take the derivative of this function, whatever this function is. We will take the derivative of this function by using the formulas which we have studied in the previous lessons. Now these are the three basic trigonometric functions: sine x, cos x and tan x. Now they are reciprocal functions. We know that reciprocal of tan x is cot x. So derivative of cot x is minus cosecant square x. So if there is a differentiable function with x, then its derivative will become, derivative of cot f of x will become minus cosecant square f of x, same function, and then we will take the derivative of this function. And reciprocal of cos x is secant x, so derivative of secant x is secant x tan x. If there is a differentiable function with secant x, secant, then we will take the derivative as secant f of x and tan f of x, applying the same formula, and then we will take the derivative of the function. And derivative of cosecant x, which is the reciprocal of sine x, will be is equal to minus cosecant x cot x. And if there is a differentiable function with the cosecant, then we will take the derivative of cosecant of that function, which is equal to minus cosecant of that function, cot of that function, and then we will take the derivative of the function. So these are the basic formulas of trigonometric functions to take the derivative of these trigonometric functions. So you have to remember these formulas before solving the questions. Now this is question number 2, it's part 2. You are asked to differentiate with respect to the variable involved. Question is tan cube theta secant square theta. Here variable is theta. So let's suppose this function equal to y. Then differentiate this y with respect to theta, dy over d theta, and derivative of this function. Now this is a product of two functions, tan theta and secant theta. There are two trigonometric functions. So to take the derivative of this whole function, we will apply product rule here. So product rule is first function as it is, and we will take the derivative of the second function, then plus second function derivative of the first function.
आपको पता है कि यहाँ पे tan क्यूब वैसे ही आ जाएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा है, क्योंकि ये पावर है तो पहले हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या होता है, 2 नीचे आ जाएगी पावर इसकी और सीकेंट थीटा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, d ओवर डी थीटा ऑफ द सीकेंट थीटा। पावर नीचे आई, पावर कम हुई और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे, देन प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फिर पावर, तो 3 पावर नीचे आ जाएगी tan थीटा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी और जो पावर के नीचे फंक्शन है विच इज tan थीटा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन आपकी पहले स्टेप की डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई। अब इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे, tan क्यूब थीटा उसी तरह आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव जो है वो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, वो सीकेंट थीटा tan थीटा होता है। सीकेंट इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला लगा के सीकेंट थीटा tan थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा उसी तरह आ जाएगा और tan थीटा का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये tan इधर सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा और tan 4 थीटा है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा दोनों में, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा tan 4 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंट 4 थीटा, उसमें से फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएंगे और 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर बढ़ जाएंगे। तो ये जो है वो इस फंक्शन की का डेरिवेटिव, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। इट्स फोर्थ पार्ट, अब इसको इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसका वेरिएबल x है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम इसको y के इक्वल रख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर। अब देखिए ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉज है और ये x का स्क्वायर रूट है यानी x की पावर 1/2 प्लस साइन x। अब इधर x वैसे ही है लेकिन ये पहले जो है वो पावर है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा cos x की पावर 1/2 प्लस साइन x की पावर 1/2। इसको अब डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx और इसका डेरिवेटिव cos x की पावर 1/2 प्लस साइन x की पावर 1/2। अब ये देखिए यहाँ पे है cos फंक्शन है और ये f ऑफ x है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, साइन f ऑफ x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और f ऑफ x वैसे ही साथ रह जाएगा x की पावर 1/2 और फिर ये जो फंक्शन है साइन के साथ एंगल की जगह पे उसका डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे पहले पावर है तो पहले पावर रूल लगेगा 1/2 साइन x, पावर एक कम हो गई और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका फिर डेरिवेटिव। इसे सिंप्लीफाई करें, माइनस साइन x की पावर 1/2 और इसका डेरिवेटिव, इस पे पावर रूल लगेगा, 1/2 नीचे आ गया और x की एक पावर कम हो गई प्लस 1/2 साइन x की पावर -1/2 और साइन x का डेरिवेटिव cos x आ गया। अब इसमें 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, इसको कॉमन निकाल लें और ये आपके पास आ गया या माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये भी नीचे चला जाएगा। एक स्टेप आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के, ये प्लस वाली टर्म को पहले लिखा और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दिया। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। In question number 3, its first part, you are asked to find dy over dx if y is equal to x cos x। ये वाला फंक्शन दिया हुआ है आपको, इसको डिफरेंशिएट करके आपने dy over dx निकालना है। तो अगेन लुक, y is equal to x cos x, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब भी y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसके साथ हम dy ओवर dx लगा देंगे। तो इसका डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos y प्लस cos y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। ये x आ गया, cos का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन होता है, ये चूंकि cos y है तो साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन y, और चूंकि ये y वाला फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लेके इसके साथ हम dy ओवर dx लगा देंगे प्लस cos y और x का डेरिवेटिव फिर 1। अब लेफ्ट साइड पे dy ओवर dx था, ये नेगेटिव टर्म है, इधर लेफ्ट साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, x sin y dy ओवर dx इज इक्वल टू
कॉज वाई इधर आ जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स इन दोनों में से कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लिया तो ये 1 प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉज वाई। हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉज वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई। So this is question number 3 and its first part. Question number 5, its first part. Again you are asked to differentiate this function with respect to this function. ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि दो फंक्शंस हैं, एक को दूसरे के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक फंक्शन को y सपोज कर लेते हैं और दूसरे फंक्शन को u सपोज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड u इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स जो है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब डी एक्स ओवर डी यू, इसका रेसिप्रोकल जो है वो -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x और ये साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तो हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। y को u के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए डी वाई ओवर डी यू लेना है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो डी वाई वाला फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स, चेन है तो ऊपर डी एक्स ओवर डी यू आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज कॉज एक्स एंड डी एक्स ओवर डी यू इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स जो है वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इट्स फर्स्ट पार्ट। Now question number 5, its second part. Here you are asked to differentiate this function with respect to this function. So it is same as we have done in part 1. We will suppose this function equal to y and this function equal to u. So y is equal to sin square x and u is equal to cos 4x. तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव, पहले पावर रूल 2 नीचे आया, sin की एक पावर कम हो गई और फिर sin का डेरिवेटिव, तो ये 2 sin x cos x आ गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx आएगा। इस पे भी पावर रूल, पावर नीचे आई cos क्यूब x और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। सो दिस इज इक्वल टू 4 क्यूब x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो -4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u मीन डी वाई ओवर डी यू हमने फाइंड करना है। तो बाय अप्लाइंग चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ओवर डी यू, डी एक्स ओवर डी यू, या यूं कह लें कि डी यू ओवर डी एक्स हमने ये निकाला था, तो डी एक्स ओवर डी यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल -1 ओवर 4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया, साइन साइन के साथ कैंसिल हो गया, कॉस की एक पावर कम हो गई तो आपके पास, और 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, -1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, -1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ये हम यहाँ पे लगा देंगे। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। Then question number 6, you are asked to show that dy over dx is equal to -1, जबकि आपके पास tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x given है। तो इसको यूज करके हम ये प्रूव करेंगे। Since it is given that tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x, ये दो फंक्शन है, एक y का एक tan x का, इधर जो है वो x का फंक्शन है, तो इस x के फंक्शन को भी आप इधर ले आओ तो आपके पास tan y is equal to 1 minus tan x over 1 plus tan x आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें 1 minus tan x over 1 plus 1 into tan x, इसको हमने tan अल्फा माइनस बीटा या tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनाना है। तो 1 जो है वो tan पाई बाई 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 यानी tan 45 1 के इक्वल होता है। तो 1 को हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया माइनस tan x 1 प्लस, फिर ये 1 जो है इसको हमने tan पाई बाई 4 और tan x लिख दिया। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास tan अल्फा माइनस बीटा का। तो tan अल्फा माइनस अल्फा जो है वो पाई बाई 4 माइनस x,
अब इधर भी tan है, इधर भी tan है, tan से कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज dy ओवर dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये चूंकि कांस्टेंट है पाई बाई 4, तो पाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। सो वी गेट dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1, और यही आपको शो करने को कहा था। Question number 7. In question number 7, you are given y is equal to square root of tan x plus square root of tan x plus square root of tan x। ये मेन स्क्वायर रूट है, इसके अंदर ये वाला, इस स्क्वायर के रूट के अंदर इसी तरह ये चलता जा रहा है और इन्फिनिटी तक ये रिपीट होता है। आपको उसने कहा प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो ये जो गिवन है इसको लेके हम वो प्रूव करेंगे। सिंस y इज इक्वल टू दिस, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम एक दफे स्क्वायर रूट लेंगे। जब एक दफे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब एक दफे स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट साइन कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट साइन खत्म हुआ, तो tan x प्लस tan x स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट tan x इसी तरह प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा। ये चूंकि इन्फिनिटी है तो इसमें कुछ भी डालें और कुछ भी निकालें तो ये इन्फिनिटी रहना। तो ये tan x प्लस, चूंकि हमें जो गिवन था उसमें 3 tan x थे, तो इसको यहाँ पे 2 रह गए। ये चूंकि इन्फिनिटी है तो एक और अगर हम ले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan। अब ये वाला जो है ये आपका y के इक्वल है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये tan x प्लस y, इसको यूज करें। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें, ये y है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव और इस वाले tan x प्लस y का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और चूंकि ये y वाला फंक्शन है इसलिए इसके साथ dy ओवर dx लग गया। tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव 1, और चूंकि y वाला फंक्शन था इसके साथ dy ओवर dx लग जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2y dy ओवर dx, आपने चूंकि dy ओवर dx लेके आना है, तो इसमें dy ओवर dx वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इस टर्म को भी लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर लें, तो 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। इधर से dy ओवर dx कॉमन निकाल लें तो आपके पास 2y माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x हो गया, और यही आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। So using this given information we have proved what we are asked to prove. Now in question number 8 you are given these parametric equations। ये इसको भी आपने पीछे किया था कि जब दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हों उनको यूज करके आपने dy ओवर dx निकालना। ये x है, इसका पैरामीटर थीटा है, y है, इसका पैरामीटर थीटा है, तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर चेन रूल लगा के हम dy ओवर dx फाइंड आउट कर लेंगे। So x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू z। x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ a cos क्यूब थीटा, a कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, इस पे पावर रूल लगेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। इसे सिंप्लीफाई किया तो 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो dx ओवर डी थीटा इसके इक्वल आ गया। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डी थीटा ओवर dx इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। नाउ y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा b वैसे ही, और साइन क्यूब, फिर पावर रूल लगा, पावर नीचे आई, साइन की एक पावर कम हो गई, और पावर के नीचे जो फंक्शन है साइन थीटा उसका डेरिवेटिव, सो दिस विल बी इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा होता है। आपने dy ओवर dx है इस में जो शो करना है उसमें इन्वॉल्व है, तो चेन रूल लगा के आप dy ओवर dx फाइंड आउट कर लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा ओवर dx। dy ओवर d थीटा जो आपने निकाला है उसमें है 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा ओवर dx है माइनस 1 ओवर 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होके आपके पास साइन की एक पावर आ जाएगी, और cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा नीचे cos की एक पावर आ जाएगी, तो ये b ओवर a माइनस और साइन थीटा ओवर cos थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो एक स्टेप जो है वो सिंप्लीफिकेशन का
आप कर लिया करें, मैंने शॉर्ट करके उसको डायरेक्ट लिख दिया। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए टेन थीटा है। आपने शो करना डी वाई ओवर डी एक्स के साथ ए, तो दोनों तरफ को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, या ये वाला ए जो है इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें और माइनस बी टेन थीटा आ गया, तो ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बी टेन थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और यही आपने प्रूव करना था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। In question number 9 again there are two parametric equations। parametric functions हैं, x इसका पैरामीटर t है और y इसका पैरामीटर भी t है। तो dy ओवर dx निकालना है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेंगे, dx ओवर dt आ जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dt आ जाएगा, और फिर चेन रूल लगा के dy ओवर dx फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा ये a वैसे ही आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और प्लस साइन टी का डेरिवेटिव cos टी। सो dx ओवर dt जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, so now we will differentiate y with respect to t, derivative of y dy over dt and derivative of this function। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, a साइन का डेरिवेटिव तो cos t आ गया, ये माइनस साइन। अब यहाँ पे दो फंक्शन है t और cos t, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा, t वैसे ही आ जाएगा और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, देन प्लस cos t वैसे ही आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट यहीं से आप इस तरह कर सकते हो। नो a cos t माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस ये वाला माइनस cos t और ये प्लस t साइन t, आपके पास ये आ गया cos t से कैंसिल होके आपके पास a t साइन t आ गया। सो dx ओवर dt ये है, dy ओवर dt ये है। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे और आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर dx। dy over dt is at sin t multiplied by dt over dx is this। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा और यू आर लेफ्ट विथ t sin t over cos t minus sin t, ये वाला नीचे। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन which is question number 9। So in the next lesson we will solve question number 10, which is the differentiation of inverse trigonometric functions। This is my profile. Keep doing hard work because practice makes knowledge perfect। Thank you for watching and Allah Hafiz।